my class 12. In this video, we're going to see principle of management laid down by Henry Ford. Okay. In the last video, we have seen principles of management that was laid down by F.W. Taylor. In that, we have seen around 7 principles. So today, we are going to see the principles that are laid down by Henry Ford. Henry Ford has laid around 14 principles of management. Okay, and we'll look at that one by one. Okay, in this video. Okay, so let's start. The first principle that was given by Ford was division of work. This was the first principle that was given by Ford. Division of work was the principle that was also given by F.W. Taylor. Okay, and what does division of work mean? Division of work means to divide the work in an organization into parts and to give a part to a specific individual or employee. इससे क्या होगा? इससे काम अच्छे से होगा. आप पूरा काम नहीं कर रहे हैं, आप उसका एक छोटा सा पार्ट कर रहे हैं. ठीक है? तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी, प्लस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल आल्सो इंप्रूव, बिकॉज कई लोग मिलके उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं और आप एक पर्टिकुलर पार्ट कर रहे हैं, तो आप उसमें एक्सपर्ट भी हो जाएंगे इन फ्यूचर एंड यू विल बी डूइंग द वर्क विद लेस वेस्टेज, ओके, एंड विद लेस यूज ऑफ रिसोर्सेज आल्सो. ठीक है? एंड योर प्रोडक्टिविटी विल आल्सो इंप्रूव बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. This was one of the most important principles which was also laid down by Taylor and same was followed by Ford. That is division of work. So this is the first principle that was laid down by Henry Ford. Okay. Now let's move to the second principle. The second principle that was laid down by Ford was authority and responsibility. So, what do you mean by authority? Authority means power, to give power to someone. Now, managers are there in organizations. They are given a work, okay, and they do that work by from others. ठीक है? मैनेजर जो होते हैं वो दूसरों से काम कराते हैं, ना कि खुद काम करते हैं. तो एम्प्लॉइज और सबऑर्डिनेट्स needs to listen to the manager, जो वो कह रहा है और उसको करना पड़ेगा. But if the managers are not given authority, power by the top management, will any employee take him seriously? No. Okay? Will say कि authority should be given to the managers. ठीक है? जो लोअर लेवल पे, मिडिल लेवल पे होते हैं, उनको अथॉरिटी दीजिए आप, तभी वो लोगों से काम करवा पाएंगे. अगर आपने पावर अथॉरिटी नहीं दी उनको, तो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा and there won't be any work done. ठीक है? So he said authority should be given to the managers and also the responsibility should also be given to the managers. सिर्फ authority देने से नहीं होगा, उनको responsibility भी देनी होगी कि ये काम आपको करवाना है. अगर इस पर्टिकुलर टाइम में डेट तक ये काम नहीं हुआ या अच्छे से काम नहीं हुआ, so you are going to be responsible for this. तभी अच्छे से काम होगा. So authority and responsibility goes hand to hand. ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, कोई मतलब नहीं है उसका. इट्स अ वेस्टेज ऑफ, ठीक है, रिसोर्सेज. ठीक है? मुझे अथॉरिटी दे दी है बट मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी उसके लिए, तो क्या मैं अच्छे से काम कर पाऊंगा? उसका नहीं कर पाऊंगा. मैं उस अथॉरिटी को हो सकता है कि मैं अपने फायदे के लिए यूज करूँ. ठीक है? सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड. दिस इज द गुड प्रिंसिपल दैट वाज लेड डाउन बाय Henry Ford. So, let's move to the next principle. The next principle is order. Ford said there should be an order in an organization. By order we mean there should be a material order and there should also be a social order. What do you mean by material order? All the materials should be stored in a particular place. ठीक है? एक specific place में store होना चाहिए, वहीं store होना चाहिए. Tools should be stored in a particular place. ठीक है? Equipment should be stored in a particular place, ताकि there shouldn't be any confusion. उसकी पोजीशन बार बार चेंज नहीं करनी चाहिए, एक ही जगह रहना चाहिए उसको. ठीक है? वर्कर आएंगे, इक्विपमेंट यूज करेंगे, ठीक है, एंड दे विल गो फॉर वर्क. ठीक है? तो मटेरियल ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? एज वेल एज सोशल ऑर्डर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सोशल ऑर्डर क्या होता है? राइट मैन एट राइट जॉब.
जो भी जॉब, कोई भी जॉब हो रहा है उसमें, वहाँ उस जॉब को करने वाला राइट मैन होना चाहिए। ही शुड बी वेल क्वालिफाइड एंड ही शुड हैव अ पर्टिकुलर स्किल टू डू दैट जॉब। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज सोशल ऑर्डर। ऑर्डर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, एवरीथिंग शुड बी एट राइट प्लेस, एवरी पर्सन शुड आल्सो बी एट द राइट प्लेस एट द राइट जॉब। क्लियर है? तो ऑर्डर इज ऑलवेज should be there in an organization. बिना ऑर्डर के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन cannot work properly. Clear है? Okay. Next discipline, next principle was discipline. Fuel focused on discipline. He said organization should have discipline. Everybody should abide the rules and regulation of an organization. There shouldn't be any disorder. Disorder नहीं होना चाहिए वहाँ पे. ठीक है? Till discipline नहीं होना चाहिए. डिसिप्लिन होना चाहिए। देयर शुड बी टाइम फॉर एवरीथिंग। लंच का टाइम अलग होना चाहिए, काम करने का टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, सुबह आने का टाइम शुड बी स्पेसिफिक। ठीक है, शाम को जाने का टाइम शुड बी स्पेसिफिक। और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, यू मस्ट अबाइड रूल्स एंड रेगुलेशन। डिसिप्लिन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन वोंट बी परफॉर्मिंग बेटर और गुड। ठीक है, बिकॉज इट इज द डिसिप्लिन दैट मेक्स द वर्कर मोटिवेटेड एंड प्रॉपर टू इट्स ड्यूटी। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो कोई अपनी मर्जी से काम करेंगे वहाँ पे लोग सब, तो अपनी मर्जी से काम करेंगे तो काम होएगा ही नहीं और कंपनी के जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विल नेवर बी अचीवेबल। तो फेयर सेड कि डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए एंड द पर्सन जो डिसिप्लिन को ब्रेक करता है या तोड़ता है ही शुड बी पनिश्ड और पेनलाइज्ड। ठीक है, सो ही सेड कि डिसिप्लिन शुड बी देयर एंड देयर शुडंट बी एनी ब्रेक और ब्रीच इन डिसिप्लिन। ठीक है, rules and regulations should be there in an organization and everybody needs to follow that rules and regulation. Worker भी, employee भी और management भी, सबको rules and regulation follow करने हैं। Clear है? ठीक है? Next principle that was that one by Taylor was stability of tenure. Stability of tenure का मतलब होता है कि when a person joins in an organization, he should be given a time to settle himself. एकदम से आके कोई भी अच्छा काम नहीं करता, it takes time, ठीक है, in order to be perfect or good in his job. तो फेयर से कि आप सारे एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स को give them some time to settle down, ठीक है, and after that they are going to improve their performance. स्टार्टिंग से कोई भी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देता है, थोड़ा टाइम लगता है समझने में, सीखने में काम, ठीक है, एनवायरनमेंट पे एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है। तो Phil said each and every worker or each and every employee must be given some time to settle himself and then, ठीक है, results should be expected from him. Clear है? Stability of tenure हमेशा होना चाहिए। कोई भी एम्प्लॉय को ये नहीं करना चाहिए कि मेरी जॉब खतरे में है अगर मैं अच्छा काम नहीं कर पाया ठीक से। He should be given time और उसके बाद भी अगर वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा then action should be taken, but starting में he should be given a good amount of time so that he settle down and does his work properly. Clear है? This is what we call as stability of tenure. Next principle जो है that is laid on by Phil was initiative. Phil said कि initiative को मैनेजमेंट प्रमोट करना चाहिए वर्कर से एम्प्लॉय से। What do you mean initiative? To do work according to the need and benefit of वर्कर। वर्कर को सामने आना चाहिए और अपने हिसाब से काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, तभी उसका डेवलपमेंट होगा। एंड इनिशिएटिव शुड बी प्रमोटेड इन एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वहाँ पे लोगों को एक छूट देनी चाहिए कि यस अपने हिसाब से काम करके देखिए, आपको लग रहा है कि ऐसा काम हो सकता है, आप अपने हिसाब से काम करिए, आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो मैनेजमेंट शुड रिवॉर्ड दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल और पर्टिकुलर वर्कर फॉर दैट। तो इनिशिएटिव होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में और ये पॉसिबल कब है जब मैनेजमेंट मोटिवेट करे एम्प्लॉय को कि वो इनिशिएटिव ले, खुद से काम करके दिखाए, अलग से काम करके दिखाए, ठीक है, अपने तरीके से काम करके दिखाए ताकि काम करने में भी अच्छा होगा, एम्प्लॉय को मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है, एंड दिस विल लीड टू अ बेटर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दिस वाज द सिक्स्थ प्रिंसिपल दैट वाज गिवन बाय हेनरी फ्यूल। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट वाज गिवन बाय हेनरी फ्यूल इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि
ऑर्गेनाइजेशन में सारी की सारी पावर कहाँ, अगर टॉप मैनेजमेंट के पास रहती है तो पावर एक ही जगह रहेगी पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, एंड दैट टॉप मैनेजमेंट ओनली हैज द अथॉरिटी, ठीक है, उसने अपनी पावर को बांटी नहीं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। पावर एक ही जगह है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक लेवल पे है पावर अथॉरिटी है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या था, इसका ऑपोजिट, पावर टॉप मैनेजमेंट ने अपनी बांटी मिडिल और लोअर लेवल, कि वो अपने हिसाब से काम करा सकते हैं, हर चीज के लिए मेरे पास नहीं आना है, ठीक है, आप अपने तरफ से भी कुछ चीजें का डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो फेयर से कि ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का बैलेंस होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए कि एक ही जगह पावर इकट्ठा हो, ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन पूरी तरह नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। दिस इज द सेवेंथ प्रिंसिपल दैट वाज लेड डाउन बाय फ्यो। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। What do you mean by unity of command? Phil said that there should be only one boss or one head for an employee or group of employees. ठीक है, दो bosses या दो heads नहीं होने चाहिए किसी के भी. Order should come only from one superior, one boss and one head. ठीक है, दो superior और अगर दो boss हो जाए तो it leads to a position of confusion. Employees and workers will be confused कि किसके order माने किसका order ना माने. इससे क्या होगा, confusion होगा, काम होगा नहीं, ठीक है, there will be wastage also, this will lead to disorganization या इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा। तो फ्योल ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही आदमी से ऑर्डर आना चाहिए, दो तीन लोगों से ऑर्डर नहीं आना चाहिए, एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए। क्लियर है? दिस इज व्हाट वी कॉल एज यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स हर डिपार्टमेंट, कई डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट का प्लान होता है, एक ही प्लान होना चाहिए, दो तीन प्लान नहीं होने चाहिए किसी ग्रुप के, ठीक है। दो तीन प्लान अगर बन गए, उस प्लान को कौन सा फॉलो करे ये कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। एवरीबडी शुड वर्क ऑन अ सिंगल प्लान एंड इन अ सिंगल डायरेक्शन, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन पे ना जाए, एक सिंगल डायरेक्शन पे सब लोग चले, ताकि वो कंपनी का गोल को अचीव कर पाए। उसके लिए प्लान भी एक ही होना चाहिए, सबको एक ही तरीके से प्लान को फॉलो करके अपने गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना चाहिए। तो फ्योल सेड कि देयर शुड बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी डायरेक्शन सिर्फ वन प्लान होना चाहिए एंड एवरीबॉडी शुड फॉलो दैट प्लान एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर बिजनेस। क्लियर है? नेक्स्ट इज योर स्केलर चेन। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। स्केलर चेन को ध्यान सुनना, इसका अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। स्केलर चेन का मतलब होता है डिपार्टमेंट्स कई होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज भी होते हैं, इंफॉर्मेशन एक दूसरे से लेनी पड़ती है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसका। ये ए है, हेड है, बी सी डी, ये एम्प्लॉयज है एक डिपार्टमेंट के, ई एफ दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए, होती भी है, ठीक है। ये मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है एंड ये मान लो आपका सेल्स डिपार्टमेंट है। क्लियर है? अब ये जो बी सी डी है ये मार्केटिंग के एम्प्लॉइज हैं और ई एफ होगा ये, ठीक है, ई एफ जी ये है सेल्स के डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज, ठीक है। और बी और ई, सी और एफ और डी और जी आर इन द सेम लेवल, ठीक है। सपोज करो डी को जी से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ही नीड्स टू फॉलो दिस स्केलर चेन, ठीक है। डी डायरेक्ट इसमें लेगा, डी पहले सी को बताएगा, इसका सीनियर सी होगा, सी का सीनियर बी होगा, उस बी को बताएगा कि क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, बी अपने हेड को बताएगा, फिर ए जो हेड है वो ई से बोलेगा कि इंफॉर्मेशन चाहिए भैया जी से, ई बोलेगा एफ से, एफ बोलेगा जी से, ठीक है। तो जी के पास आया क्वेश्चन, तो जी इसका आंसर देगा, रिप्लाई करेगा इंफॉर्मेशन का, जी रिप्लाई करेगा एफ को, एफ विल रिप्लाई टू ई, ई विल रिप्लाई टू ए, एंड देन अगेन ए विल से टेल टू बी, बी फिर सी को देगा, सी से फिर बाद में डी को मिलेगा। भैया इतना लंबा प्रोसेस एक इंफॉर्मेशन,
दिस इज व्हाट यू कॉल ए स्केलर चेन। चेन फॉलो करनी है मुझे, ठीक है। तो फ्योल सेड कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो स्केलर चेन। मगर उसने एक बात और भी कही है, अच्छी बात कही है। उसने कहा कि अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेनी है सेम लेवल पे, या तो डी और जी से लेनी है, या सी और एफ से लेनी है, या बी और ई, ये सेम लेवल के एम्प्लॉय से लेनी है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर चाहिए आपको, ठीक है, तो ही सेड कि डी कैन डायरेक्टली टॉक टू जी एंड गेट द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये ब्रिज बना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज गैंग प्लान। He said, grant plan can be used directly to get information from other departments of the same levels of employees, okay, only in case of information is vital or very important for an organization. नहीं तो आपको स्केलर चेन फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। दिस वाज स्केलर चेन प्रिंसिपल दैट वाज लेट डाउन बाय फ्योल। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस डायग्राम को अपने कॉपी में बना जरूर लीजिएगा इसको, ठीक है। Next principle is subordination of individual interest over general interest. Phil said, हर एम्प्लॉयज के एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। He said, अगर हर एम्प्लॉय अपना इंटरेस्ट ही फॉलो करता रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल कभी भी अचीव नहीं होगा। तो फ्योल सेड कि मैनेजर को एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहिए कि अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट की जगह वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को या जनरल इंटरेस्ट को फॉलो करे, उसको अचीव करने के लिए मेहनत करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो पाए। और इफ द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अचीव, दिस विल इनडायरेक्टली बेनिफिट द एम्प्लॉयज ऑल्सो। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग गुड, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, इससे उसकी भी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी और उससे भी एम्प्लॉय की भी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बिकॉज मैनेजमेंट कैन गिव बोनसेस इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉय आल्सो, ठीक है। दिस वाज द प्रिंसिपल, दिस सबऑर्डिनेशन ऑफ सबऑर्डिनेशन मतलब होता है अपने खुद के इंटरेस्ट को चेंज करके जनरल इंटरेस्ट को फॉलो, ठीक है, अपने इंटरेस्ट को साइड में रखना एंड टू फॉलो द ऑर्गेनाइजेशन interest. This is what you call as subordination of individual interest over general. Clear है? Next principle. Initiative हो गया. Equity. Equity का मतलब होता है इस है कि इक्विटी का माहौल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. Everybody should be treated equally. There shouldn't be any partiality done to any. Every employee should be given fair chance of development and growth in an organization. There shouldn't be any nepotism. ठीक है, ये nepotism वर्ड आजकल बहुत आ रहा है न्यूज़ में, मीडिया में, ठीक है। nepotism हर जगह होता है, ठीक है, ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन में nepotism होता है, फेवरेटिज्म भी होता है यहाँ पे। तो फ्योल सेड कि आप फेवरेटिज्म और nepotism मैनेजर्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, उसको सारे एम्प्लॉयज को बराबर देखना चाहिए, ठीक है, इक्वली देखना चाहिए। नहीं तो नेपोटिज्म में क्या होगा, अदर एम्प्लॉयज विल नॉट बी मोटिवेटेड, दे विल फील दैट दे आर बीइंग लेफ्ट आउट, ठीक है, और वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इक्विटी का माहौल आपके ऑर्गेनाइजेशन पे होना चाहिए, ये है, ठीक है। वी हैव डेल्ट विद टू प्रिंसिपल्स, क्या हो गया हम लोग, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, अथॉरिटी, ऑर्डर, डिसिप्लिन, स्टैबिलिटी ऑफ इनिशिएटिव, सेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेंज, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, इक्विटी, ठीक है। स्पिरिट डी कॉर्प्स, स्पिरिट डी कॉर्प्स क्या होता है, ठीक है, एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है स्पिरिट डी कॉर्प्स मींस टीम स्पिरिट, ठीक है। टीम स्पिरिट का मतलब कि देयर शुड बी टीम, फेल सेड कि टीम स्पिरिट होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन अमंग द ग्रुप ऑफ, ठीक है। अकेला कोई काम नहीं करना चाहिए, सबको टीम स्पिरिट में काम करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलना चाहिए, ठीक है। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। अकेला कोई भी काम ऑर्गेनाइजेशन को
अपने गोल की तरफ नहीं पहुंचा पाएगा, ये टीम से ही गोल की तरफ हम पहुंच पाएंगे। ठीक है, एक मूवी थी उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, चकते इंडिया। ठीक है, आई होप यू हैव सीन दिस मूवी चकते इंडिया। शाहरुख खान वाज द कोच ऑफ वुमेन्स हॉकी टीम। उसको एक बात बहुत परेशान कर रही थी, टीम तो अच्छा कर रही है मगर टीम सब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, नोबडी इज हैविंग अ टीम स्पिरिट। ठीक है, टीम एफर्ट नहीं हो रहा, सब इंडिविजुअल खेल रहे हैं। दिस थिंग इज वरीड शाहरुख खान, तो ही वाज वरीड दैट देयर शुड बी अ टीम स्पिरिट, और टीम स्पिरिट लाने के लिए उसने बहुत मेहनत की। जब टीम स्पिरिट आई, देन दे वॉन द वुमेन्स वर्ल्ड कप। ठीक है, सो टीम स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड प्योर सेट कि बिना टीम स्पिरिट के कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव नहीं करता। ये हो गया हम लोग 13 प्रिंसिपल्स। एक प्रिंसिपल और बचा है हम लोग का, दैट इज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी एंड वेजेस। फिर से कि सैलरी एंड वेजेस जो एम्प्लॉय को देता है मैनेजमेंट, इट शुड बी फेयर। फेयर का मतलब क्या होता है, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज पर द स्टैंडर्ड्स होना चाहिए जो एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सके। पीपल वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ मनी। ठीक है, वो आते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जुड़ते हैं, काम करते हैं बिकॉज ऑफ सम मनी, एंड मनी इज द फॉर्म ऑफ सैलरी एंड वेजेस। तो remuneration should be fair enough so that the employees are motivated and they do good work, because अगर सैलरी एंड वेजेस अच्छे नहीं दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, not as per the par, as per the standards that is followed in the market, employees won't be motivated, they will be demotivated हो जाएंगे employees, and they won't be working fair enough in an organization. This will lead to a downfall in organization. ठीक है, प्रॉफिट भी कम होगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी कम होगी ऑर्गेनाइजेशन की, एंड दिस विल लीड टू अ लॉस टू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो रेम्यूनरेशन एक्ट्स एज एन बूस्टर फॉर एन एम्प्लॉय टू वर्क हार्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दिस वाज द 14 प्रिंसिपल्स दैट वाज लेट डाउन बाय मिस्टर हेनरी फ्यूड। आई होप यू हैव noted down. You can note down all the principles by pausing my video and all the names of these principles. Okay? In the next video, we are going to see the next part of this chapter. Thank you very much.